Yes. See here, we have seen last time. Okay. What is the force acting on a electric charge kept in a magnetic field? So whenever a charge is kept in magnetic field, it experiences a force which is given by F is equal to Q into E, right? But whenever the charge is just kept in magnetic field, it doesn't experience any force so far as it is kept at rest, because the magnetic field requires motion for the force to act on it, the charge. तो चार्ज को मूव करने के मतलब फोर्स ऑफ एक्ट होने के लिए चार्ज को मूव होना जरूरी है, और वो भी मूव कौन से डायरेक्शन में होना जरूरी है? जरूर इस मैग्नेटिक इंडक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज को मूव होना जरूरी होगा, तब जाके उसके ऊपर फोर्स काम करेगा, चलेगा। और ये जो फोर्स काम करता है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, F is equal to Q V B in this way, because this force depends on the charge, the velocity and magnetic induction as well. And also we have seen that the if suppose the charge is not moving perpendicular but at some angle inclined theta with the magnetic induction, then we have to resolve this velocity of the charge in two components, that is v cos theta, which is the parallel component, and here it is v sin theta, which is the perpendicular component. And only this v sin theta, that is the perpendicular component of velocity, has to be considered in finding the force acting on this charge kept in a magnetic field, remember. So this becomes the formula for force acting on a charge moving at an angle theta with the magnetic field with velocity v. Okay, so इसको हम लिख सकते हैं F is equal to Q into V sin theta into B, जिसको हम F is equal to QVB sin theta ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और वेक्टर फॉर्म में उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, उसका भी हमने प्रैक्टिस किया था बहुत सारा। ये देखो, ये वाला जो वेक्टर फॉर्म बनता है, एफ बार इज एक्चुअली इक्वल टू v bar cross b bar, where v is going to be the velocity of the velocity vector and b is actually going to be the magnetic induction vector. ओके, तो ये सब चीजें हमने देखी थी लास्ट टाइम। इवन इससे भी आगे जाके मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से निकाला जाता है, तो वो भी हमने देखा था। और किस तरह से राइट हैंड रूल अप्लाई करने का, तो उसका भी हमने कुछ प्रैक्टिस किया था। ओके, और ये भी हमने देखा था कि द फोर्स बिकम्स जीरो इन 4 डिफरेंट कंडीशंस, आइदर व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, और एंगल बिकम्स जीरो, और मैग्नेटिक इंडक्शन इटसेल्फ बिकम्स जीरो, एंड द चार्ज इटसेल्फ इज जीरो. So in all these 4 cases, the magnetic force acting on the charge will be zero. Okay. और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि whenever the charge particle enters into a circle or into a magnetic field, what happens is a force acts on that particle which is always perpendicular to the velocity, and at every point. So at every point the force will be perpendicular to the velocity like this. The velocity will be here and the force will be directed here like this. Velocity will be downwards, so the force will be rightwards like this. So since the force is always perpendicular to the velocity, it plays the role of centripetal force, which becomes a necessary force for circular motion. ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वो काम कर लेता है, और इसकी वजह से इसको यूज करके ही हम रेडियस निकाल सकते हैं सर्कुलर पाथ का। तो वो हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर मतलब ये v एंड f अगर परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो f becomes equal to qvb, and if we equate it with this centripetal force, that is mv square upon r, then we can get this as qvb is equal to mv square upon r, which gives r is equal to mv upon qb, correct है? So this equation has derived for radius, and this equation shows that radius actually depends on 4 quantities: mass, velocity, charge and magnetic induction. ये 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें भी हमने देखा था कि if a charge particle enters with the velocity v in the magnetic field b here, then it follows the radius r, which is given by this formula, करेक्ट है? ये फॉर्मूला से वो रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है? और ये रेडियस जो है, तो रेडियस
ये इसमें हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पता चलता है कि मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक इंडक्शन, इन 4 फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। उससे ही हम समझ सकते हैं कि अगर इस अलग-अलग चार्जेस अगर सेम वेलोसिटी के साथ अगर फायर किए जाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उनका जो रेडियस है वो कौन कंट्रोल करेगा? मास टू चार्ज रेशियो कंट्रोल करेगा। अगर अलग-अलग चार्जेस कांस्टेंट मोमेंटम मतलब सेम मोमेंटम के साथ अगर फायर किए जाते हैं, तो उस केस में रेडियस जो है वो इनवर्सली चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर सभी पार्टिकल्स जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर फायर किए जाते हैं, तो उस केस में रेडियस जो है वो रूट एम बाई क्यू ये रेशियो डिसाइड करेगा। ये रूट एम बाई क्यू रेशियो जिसका ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखी थी। और उससे भी आगे जाके ये भी हमने देखा था कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, whether it is positive or it's negative. So if the charge is positive, then right hand rule will be obeyed by the charge. But if it is negative, then the right hand rule will not be obeyed by the charge, but the opposite direction force will act on the charge, which will make it move in the clockwise direction instead of this anti-clockwise direction. Okay, so ये सब चीजें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। And finally, the Lorentz force, which is the net force acting on a charged particle which is moving in a combined electric as well as magnetic force or field. तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये पार्टिकल मूव होता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स काम करता है वो इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर हुआ करता है। And hence we can get that F net is going to be actually equal to Q times of E bar plus Q times of B bar cross B bar. And this force is actually called as the Lorentz force, remember. And it is the vector sum of the two forces, one of which is the force due to electric field and other one is going to be the force due to magnetic field. और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा था कि this happens mostly in cathode ray tube, remember. तो ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन stream is just allowed to flow inside a crossed electric and magnetic field. Crossed मतलब क्या? दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली गोइंग टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देख सकते हो ठीक से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली गोइंग टू बी इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे क्रॉस दिख रही है नहीं, तो वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। यस, and because of that the force acting on this charged particle due to electric field will be actually downwards, no doubt. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स उसके ऊपर काम करेगा वो राइट हैंड रूल से अगर हम निकालेंगे तो वो ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। और ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट ऑलरेडी है। इफ वी एडजस्ट देयर मैग्नीट्यूड्स in such a way that no force acts on the particle and it just passes undeviated through this crossed field, then we can be able to find out the velocity of that particle just by dividing the intensity by magnetic induction. So this simple relationship is obtained here by dividing between this velocity, intensity and magnetic induction in this way. So ये तीनों में से कोई भी अगर दो दिए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। मोस्टली क्या है ना कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों पता ही होते हैं, जिससे ही हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू सी द नेक्स्ट कांसेप्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट द cyclotron. Okay, see here what is cyclotron and what happens in it and what is its use, that is we have to see in this chapter here. So see here what is cyclotron. तो देखो cyclotron consists of actually cyclotron is a device which is used to create very fast moving charges. Okay, remember बहुत ज्यादा हाई स्पीड में मूव होने वाले चार्जेस तैयार करने के लिए या पैदा करने के लिए ये साइक्लोट्रॉन यूज होता है। सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर देखा था, याद होगा आपको वैन डी ग्राफ जनरेटर। अगेन इट इज अ डिवाइस which is used to produce heavy
चार्जेस और हाईली मूविंग चार्जेस, हाई स्पीड के साथ मूव होने वाले चार्जेस पैदा करने के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर भी यूज होता है। और एट द सेम टाइम वी गेट दिस cyclotron also for the same purpose. We can use this cyclotron also for the same purpose. तो यहाँ पे cyclotron भी same aim satisfy करता है, that is to produce the uh, charges which are moving at a very very high speed. So in order to produce such charges, we have used Van de Graaff generator. But Van de Graaff generator is works on DC, DC सप्लाई पे वो काम करता है, बराबर। बट साइक्लोट्रॉन जो है इट वर्क्स ऑन एसी, तो एसी सप्लाई पे ये साइक्लोट्रॉन काम करता है। एंड दैट्स व्हाई जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज के अंदर एसी यूज किया जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज किया जाता है। और इसलिए साइक्लोट्रॉन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस which cannot be satisfied by Van de Graaff generator because it works on DC, whereas cyclotron works on AC. That's why it's more important to understand how this cyclotron works basically. So see here, this cyclotron works on the principle of Lorentz force, just we have seen in the last lecture. Whenever the charge is present in the electric field, it experiences a force which is given by Q into E. And whenever the charge is moving inside a magnetic field, the force is given by F is equal to Q times of V bar cross B bar. Okay, तो ये हमको समझना है। So it works on these principles. Okay, what is done actually in cyclotron is, see here, the cyclotron consists of उसको हम दो पार्ट्स में दिखाएंगे। एक तो उसका फ्रंट व्यू भी दिखाएंगे और उसके बाद फिर उसका टॉप व्यू भी दिखाएंगे। Okay, if we see the front view of this cyclotron, it looks something like this. Just wait. Yes, see here, it consists of two semi-cylindrical Ds. These are called as Ds. Okay, इनको हम क्या बोलेंगे, शेप का है ना वो, इसलिए उसको Ds कहा जाता है। Okay, it's just like a semi-cylindrical, एक semi-cylindrical टाइप का होता है वो, इस तरह से। एंड इस द फर्स्ट सिलेंडर, ये जो ऊपर का सिलेंडर जो है, इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स हियर, पॉजिटिव टर्मिनल और वन टर्मिनल ऑफ दिस एसी सोर्स, नो डाउट। देखो इसको हम एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखेंगे और जो दूसरा जो डी है उसको भी हम दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, उसी एसी सोर्स के दूसरे टर्मिनल के साथ। देखो ऐसे, ये हमारा एसी सोर्स है।
ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इसमें से प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलना पड़ेगा हमको बेटर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये दिख रहा है गैप। ये देखो, इस गैप की वजह से क्या होगा कि देयर इज नो कनेक्शन, दैट मींस नो करंट कैन फ्लो फ्रॉम दिस डी टू दिस डी हियर। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ये बात तो क्लियर है, समझ करो ठीक से। अभी दूसरी बात ये है कि इसके इसके ये पूरा जो है, इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का जो ये है रीजन है, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस in this whole region in which it will be directed inwards, remember। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ये देखो ऐसे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड which is directed inwards। दूर दूर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्रॉसेस का मतलब समझा ठीक से। इट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड which is directed inwards into the plane of this paper। ओके, ये पूरे स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ होता है जो कि अंदर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। चलो ठीक है। ओके, नाउ सी, अच्छा ये तो हमारा फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू मतलब टॉप से अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, बट अगर हम फ्रंट से देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। वो थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, बट फिर भी समझ के लो उसको ठीक से देखो। Okay, just we draw it by hand only, so it looks like this।
जस्ट इमेजिन दो सिलिंड्रिकल जो शेप्स है तो वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ, ठीक है। और इसमें ऊपर और नीचे एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट्स जो है वो यहाँ पे रखे हुए होते हैं, ताकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सके। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है which is going to be there in the downward direction। ओके, ये इस तरह से। Actually, this is the North Pole, suppose, and that is the South Pole। जो नीचे है तो वो सपोज साउथ पोल है, तो इसके कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और ये इस तरह से पूरा असेंबली होता है। इसमें ये जो है वो दोनों हेमिस्फेरिकल डीज है। देखो, ये जो है ना, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये हेमी सिलिंड्रिकल मतलब सेमी सिलिंड्रिकल शेप के बने हुए दो डीज हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये इस तरह से, और इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये देखो ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द टॉप व्यू वी कैन सी, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। अगर सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाला जो है वो फ्रंट व्यू है और ये वाला जो है वो टॉप व्यू है, ठीक है। अभी इसमें करते क्या है, देखो ठीक से, ये एट अ टाइम दो फील्ड्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। चेक करो एक बार, कौन से। एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, और एट द सेम टाइम दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बनेगा इन डीज के ऊपर जो चार्ज हमने रखा है उसके वजह से। देखो यहाँ पे, whenever this circuit is switched on, therefore how many triangles can I draw out of these 10? To draw one triangle I need 3 points। see here, ये जब हम सर्किट ऑन करते हैं, सर्किट जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इन द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो उस समय ये जो टर्मिनल है, ये ऊपर वाला टर्मिनल एक्चुअली पॉजिटिव हो जाता है। ये देखो, ये पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे बन जाता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। देखो, इन द स्पेस बिटवीन द टू डीज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, in this way। And because of that, and at the same time, remember, a charge is also introduced at the center of these two Ds or in the space between these two Ds। मतलब यहाँ पे इन दोनों के स्पेस में यहाँ पे जो है ना एक चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये देखो, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे हम ये चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है। And because of that force, this charge will start moving in the downward direction, no doubt। चलो ठीक है, जैसे ये चार्ज मूव करना चालू करता है
So as soon as this charge starts moving in this direction, so magnetic field will be there in order to exert the force on it, and that magnetic field will just exert the force, and that force will keep it on rotation. तो ये जो force है वो उसको घुमाने के लिए try करेगा, and because of that force the particle will perform a circular motion, correct है? And because of that circular motion the particle will just follow this semicircle and enter into the space between these two Ds after performing a semicircle like this. Okay, तो ये semicircle उसने complete करके, just wait, okay, so this particle will start moving in a circular motion and just complete a semicircle and just enter into the space between these two Ds after moving in a circle. Okay, but what happens is at that time whenever the particle enters into this space between the two Ds, what happens is the polarities are reversed. अभी देखो यहाँ पे ये जो polarities है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा अभी, और ये जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। देखो ठीक से, इफ दिस होल डी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and this whole d becomes a negatively charged, what will happen is a strong electric field will be produced in the space between these two Ds, which is going to be in the upward direction this time. ये देखो इस टाइप का, इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, समझ रहे हो ठीक से? And because of that electric field, this charge here will experience a force in the upward direction here, and because of that force this charge will start accelerating in upward direction, and since that charge is accelerating in upward direction it will continue to move in the same direction and just get accelerated, and because of that its speed will increase. Okay, the speed also will increase, and at the same time its radius of curvature will also increase, and once again it will enter into the space between these two T's. Okay, तो यहाँ पे वो फिर से एक बार इस स्पेस के अंदर इंटर करेगा, चलो ठीक है, but after that the polarity are just again reversed. देखो यहाँ पे ये जो polarities हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो फिर से एक बार रिवर्स हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था और ये जो नेगेटिव टर्मिनल था, तो वो अपना पोलरिटी बदल देंगे, और उसकी वजह से अभी क्या होगा, तो देखो ठीक से, दिस टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिव चार्ज वंस अगेन, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, करेक्ट है? जिसके कारण इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इन द स्पेस बिटवीन द टू T's there will be a strong electric field will be produced in the downward direction, and because of that electric field this charge will also experience a force in the downward direction, and this force will just try to accelerate that charge, and hence the charge will continue to move in the same direction, and it will accelerate in that direction, and because of that just its acceleration is increased, so its velocity will also increase and radius will also increase, and after completing a semicircle once again the charge will enter into the space between these two D's, and at the same time once again that happens that polarity will just get reversed. ये देखो यहाँ पे जो polarity है तो वो फिर से एक बार रिवर्स हो जाएगा, जो कि अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव था तो वो फिर से उल्टा हो जाएगा, और अभी क्या होगा, तो देखो this terminal will become negative and this will become positive, and hence you can see, and because of that what happens is an upward electric field will be produced in this space between these two D's, and because of that upward electric field a force will act on this charge in the upward direction, because of which this charge will just get accelerated, and because of that acceleration the charge will move in the circular motion because it is already moving in the magnetic field, right? So magnetic field keeps the charged particle moving in a circular motion, and electric field accelerates the particle every time whenever it enters into the space between the two D's, right? So अभी फिर से ये दो D's के बीच वाली space में आ गया, देखो empty space में आ गया, and because of that what will happen is once again this electric polarity जो है इस AC source का जो polarity है वो opposite हो जाएगा, जिसके कारण अभी फिर से एक बार ये जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा
और ये नेगेटिव बन जाएगा, जिसके कारण एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इस चार्ज के ऊपर काम करेगा, जो कि उसको एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. As soon as this charge gets accelerated, it will increase its velocity, but as it moves with higher velocity, the magnetic force will also get increased, and because of that its radius will also get increased. So in this way, the velocity of particle goes on increasing every time it enters into the space between the two Ds, and the charged particle will go on following a spiral path, opening spiral path in this way here. And suppose at some point here there is a, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, ये देखो इस तरह से लाइक दिस. तो इसका मतलब यहाँ पे जो है एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग, जिसमें से ये चार्ज पार्टिकल फाइनली बाहर आ सकता है. ये देखो ऐसा, यहाँ से वो बाहर आ सकता है. So what will happen here is the particle will just perform in a circular spiral path in this way, and whenever its radius will become exactly same as the radius of this cyclotron, it will just exit out from this point and travel in the straight line afterwards. Okay, तो यहाँ से वो इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आएगा, बट जैसे यहाँ पे आता है तो उसके बाद क्या होगा, it will move in the straight line like this and will move with a very very high speed. अभी जब ये यहाँ पे बाहर आएगा इसमें से, तो उस समय उसके पास बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होगा, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो बाहर एग्जिट करेगा, और जो भी टारगेट उसके सामने रखा हुआ है तो उसके ऊपर जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसको वो ब्रेक करेगा. न्यूक्लियस को ब्रेक करके वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने का जो कैपेसिटी है तो वो उसके अंदर होगा, और उतना हाई वेलोसिटी उसके पास एक्वायर हो जाता है just because of this electric and magnetic field. Electric field keeps accelerating the charged particle continuously every time it enters into the space between the two Ds, and magnetic field on the other hand keeps revolving it in the circular motion, and because of that in a very small space it can acquire a very increasing velocity, and at the end whenever it exits out, it exits with the very very tremendously high velocity which is in the several mega electron volts. Remember, ये जो velocity जिसके साथ वो बाहर आता है वो कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होता है, उसका जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज में होता है, एंड दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक द न्यूक्लियस. ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज के अंदर जो एनर्जी लगता है वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी लगता है, और इसलिए इस पार्टिकल को अगर हम फायर करेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने की क्षमता रखता है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है. So and various nuclear reactions can be carried out using this cyclotron. Remember, what is the principle which this cyclotron is based upon? See here, it is based on the principle of Lorentz force, the force acting on the charged particle whenever it enters into a crossed electric as well as magnetic field. So here the electric field and magnetic field are just perpendicular to each other, and because of that, and the electric field is variable. ये भी हमको याद रखना चाहिए तरह से. Electric field just fluctuates in direction. You can see clearly whenever this charged particle is moving in the downward direction, the electric field will also be in the downward direction. But whenever the charged particle is moving in the upward direction, the electric field will be also there in the upward direction like this. So ये electric field जो है वो हमेशा इस चार्ज पार्टिकल को हेल्प करता है, एक्सेलरेट ही करता है, और इसकी वजह से ये अल्टरनेटिंग होने की वजह से ये जो साइक्लोट्रॉन है वो इस तरह से काम करता है. जब ये चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और जब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड्स, बिकॉज एट दैट टाइम दिस टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिव and this will become negative, whereas in the other case this terminal will become positive and this one will become negative like this. So this happens, and this is the working of cyclotron. Remember, and here it is very very important and interesting to understand that the cyclotron or the particle requires the same time every time it enters into the space between the two Ds. देखो,
यहाँ से सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए पहला वाला जो सेमी सर्कल उसका है वो कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम उसको लगता है, यस मृणाल। तो देखो फर्स्ट सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम इस पार्टिकल को लगा, ठीक है, सपोज दिस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट हियर एट द सेंटर, ओके। तो यहाँ से सबसे पहला सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आने के लिए जितना टाइम लगा, तो सेकेंड सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, क्या समझते हो? फिर ज्यादा वापस टाइम लगेगा। यस ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, फिर वापस थर्ड सर्कल जो है वो थर्ड सर्कल सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, उसको ज्यादा टाइम और ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम लगेगा सर। Actually, it is very interesting to note here that it requires same time to complete every semicircle. देखो यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, यहाँ से इधर ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया, उसको उसके लिए जितना भी टाइम लगा उतना ही टाइम उसको लगेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब दूसरा सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा तीसरा सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए, उतना ही टाइम फिर से लगेगा चौथा वाला सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन उसका ये है कि देखो यहाँ से जब वो फर्स्ट सेमी सर्कल जब कंप्लीट करता है तो उस समय उसका वेलोसिटी जो है वेलोसिटी कम होता है, बराबर, और उसकी वजह से उसका जो रेडियस है तो वो रेडियस भी तो कम है, बिल्कुल सीधी बात है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल इन द इनिशियल केस, ओके, एंड एट द सेम टाइम द रेडियस इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी स्मॉल इन द इनिशियल केस, ठीक है, वेलोसिटी रेडियस दोनों छोटे हैं, बराबर। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक सेमी सर्कल कंप्लीट करके दूसरे सेमी सर्कल कंप्लीट करने जाता है तो उस समय क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेट किया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा रेडियस भी तो बढ़ गया। ये देखो पहला वाला रेडियस कितना छोटा था और अभी का रेडियस बड़ा हो गया, तो इसलिए रेडियस बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी तो बढ़ता जा रहा है। सो वेलोसिटी एंड रेडियस both of these are just increasing simultaneously and they are just increasing proportionately, and because of that only the time required. Acha, what is the time required for this particle to complete a semicircle? Tell me, कोई भी पार्टिकल को सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो कैसे निकालते हैं? it is called as the period of revolution. Half of period of revolution will be the time required for the particle to complete semicircle, correct है? So अभी हमको पता है सर्कुलर मोशन के अंदर हमने देखा है कि पीरियड ऑफ सर्कल कितना होता है, पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v, करेक्ट है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? अच्छा, इसका अगर हम आधा करेंगे क्योंकि सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना वो, तो सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए हमको फॉर्मूला मिलेगा t हाफ विच विल एक्चुअली बी इक्वल टू, जस्ट यहाँ से 2 उड़ा दो तो वो हमको मिलेगा सिंपली पाई इंटू आर अपॉन 2, करेक्ट है? टी सॉरी पाई इंटू आर अपॉन वी, करेक्ट है? ये हमको फॉर्मूला मिल गया, देखो ठीक से। अभी इस फॉर्मूला के अंदर ये जो हम इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं वो ये है कि दिस टाइम time taken by the particle to complete semicircle depends on the ratio of radius to velocity, correct है? यस, ओके। सो बेसिकली यही बात हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि सिंपल सी बात यह है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये हमने यहाँ पे देखा। एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट द रेशियो
of R to V, which this time depends upon, time period depends upon. ओके तो ये जो सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो रेडियस और वेलोसिटी के रेशियो पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी और रेडियस दोनों प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। सिर्फ वेलोसिटी अकेला नहीं बढ़ रहा है बल्कि रेडियस भी बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि रेडियस और वेलोसिटी दोनों साथ साथ बढ़ते होने की वजह से उनका जो रेशियो है तो वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसीलिए टाइम द पार्टिकल रिक्वायर्स द सेम टाइम to enter into the space between the two Ds after covering the semicircle, even if it's moving in the spiral path. तो अगर वो स्पाइरल पाथ में घूम रहा है फिर भी उसको सेम टाइम लगता है क्योंकि उसका वेलोसिटी और रेडियस दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में सबको ठीक से? ओके तो चलो ठीक है। So here we have seen about the cyclotron and its applications and also its construction and working. But some theoretical formulae are required to prove and to be discussed here in this case of cyclotron. So that we will cover in the next lecture tomorrow. Okay, so in the next lecture, in tomorrow's lecture, we will see some formulae which are developed especially for cyclotron. Okay. So that's all about today. So we'll stop here. Thank you all of you.